आज ये खास प्रोग्राम जो डॉक्टर कल्याणी मानके ने हमें बताया है वो हम आप सबके लिए प्लान किया है। डॉक्टर मानके के साथ हमारे कम से कम 15-20 साल से हमारा जुड़वा लगा है और वो पुणे के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑडियोलॉजिस्ट में से हैं। उनके साथ आज जो आई हैं स्पेशल स्पीकर्स वो हैं तृप्ति गोवारेकर और हर्षाली मुरुदकर। ये दोनों अंकुराम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड जेन वाई डेवलपमेंट सेंटर को संभालते हैं, जहां वो पेरेंट्स को समझाते हैं कि एकेडमिक्स में क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम है अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर हर्षाली एचआर में पहले थी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी, परंतु कुछ साल बाद 15-1 साल के बाद वो पूरे एकेडमिक्स में गई हैं और अभी 25 साल से एकेडमिक्स में कंसल्टेंट है और सबको समझाती हैं कि क्या सबसे अच्छा प्रोग्राम है उनके बच्चों के लिए। हमारे वी कनेक्ट बच्चों के लिए NIOS is one of the best programs possible, especially when they have problems with hearing and speech and other issues. And today we request you to listen to them as they speak to you. And Dr. Manke will also add the ideas that can be done and followed by you. We look forward to you enjoying this program. And if you have any questions, you can either raise them in the chat box or towards the end, there will be a question and answer session. It will be replied to you. Even thereafter, in case you have anything, you are most welcome to message us. We will try to get back and give your replies to you later. Okay, thank you. And I hand it over to Julie and Dr. Harshali and Trupti Govarikar to take over and explain all the details to you. Thank you. In Hindi and English. And in case if there is anyone in Marathi also, you can ask the questions in Marathi. I will try to put all these three languages while I'm talking. So myself, Dr. Harshali Murkar, thank you so much, ma'am, for a very kind introduction. Almost for about a decade and a half, we have been working for NIOS. We have two schools. Myself, I started it about 10 years ago. We started Genware Development Center. And recently, with Trupti Gowarikar, we have started Ankuram in Pune, where we have a holistic learning NIOS program now. So it is a different aspect totally. So when we started NIOS, the whole idea was to make education and academics easy for the students. So first, let's take a quick information about Ankuram. What are we offering so that even if you are distant or not in Pune, you can get full benefits of the both from us, because the whole objective and the mission of both of us is to reach to each child who is doing NIOS, even if they are not in Pune, and help him to the smallest of the issues. Like if he wants an answer to one question in his notebook, he should get it from us. So that is the whole idea, that children should not suffer, children should not waste their time, and they should get maximum support. The NIOS kids especially, because they don't have any ecosystem, they don't have a support. सो जो बच्चे घर में ऑनलाइन कनेक्ट होके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो दिक्कतें आती है, उनके लिए प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है स्वयं करके। पर अभी हमारा ये प्रयास है कि हम घर घर पहुंचे ऑनलाइन मीडियम से, जहां हम हमारी टीचर्स ऑनलाइन सेशंस दे, उनको स्टडी मटेरियल दे, उनके जो क्वेश्चंस है उनके उनके सारी क्वेश्चंस के हम आंसर्स दे। अगर किनको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई दिक्कतें आ रही है रजिस्ट्रेशन में, तो हम कर सके। और एक हमारा ऑनलाइन स्कूल अभी खुलने वाला है, क्योंकि ऐसे होता है कि रूरल एरियाज में बच्चे नहीं पहुंच सकते स्कूल तक, तो फिर स्कूल उन तक पहुंचेगी। अगर अगर क्यों, सबके पास मोबाइल तो होता ही है, बस एक मोबाइल का जरिया है जो हमने कोविड में देखा है, उसके जरिए हम ऑनलाइन स्कूल भी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, वो 10th और 12th करने से वंचित ना रहे। सो हमारा अंकुरम के हमारे 3 सपोर्ट है जो हम सबको बताएंगे और आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। पहला तो NIOS का ऑनलाइन स्कूल,
दूसरा, हम ऑनलाइन शॉप चालू कर रहे हैं जहां हम आपको जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो हम आपको देंगे। एंड तीसरा, अगर आपको पर्सनल ट्यूशन, जैसे समझो एक ही लेसन के लिए आपको ट्यूशंस चाहिए या 2 ही लेसन्स के लिए आपको सेशंस चाहिए, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो ये हमारे 3 इनिशिएटिव जून से शुरू होने वाले हैं। तो अभी मैं एनआईओएस बोर्ड के बारे में बताऊंगी, पर उसके पहले क्या हमारी विजन है, मिशन है, और एनआईओएस बोर्ड और अंकुरम के बारे में थोड़ा सा और तृप्ति मैम बताएंगी। सो आप देख सकते हैं इधर पे ये स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लान हमने जो बनाया है, इधर पे अडॉप्शन कर रहे हैं हम एनआईओएस बोर्ड के लिए। अब एनआईओएस बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। इट इज़ वेरी मच वो एक लेजिटिमेट बोर्ड है, गवर्नमेंट से बना है, इसलिए इसमें कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई काम नहीं है इसमें। और ये रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ नहीं, सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। तो अभी इसके सपोर्ट लेके हम अभी स्टूडेंट्स के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाया है। इधर पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, कुछ भी लगा तो बाद में प्लीज वी विल डेफिनेटली शेयर ये नंबर्स, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी अंकुरम का एनआईएस स्कूल मतलब कैसे हम का ऑपरेट करते हैं उसके बारे में मैं 2 लाइंस बताऊंगी इधर पे। एक तो पहले हम पैरेलल स्कूल के जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल इमोशनल एकेडमिक लर्निंग होती है दोनों साइड से। सिर्फ एकेडमिक्स सिर्फ नहीं है, सिर्फ बुक्स के बारे में नहीं है, ये सिलेबस के बारे में नहीं है, ये पूरा की पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में है। 9:30 to 2:30 तक हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर लेवल, जिसमें 10th और 12th दोनों भी रहते हैं उसमें, जिसमें हम सुबह मॉर्निंग असेंबली रखते हैं, प्रेयर है, हमारा सुपर ब्रेन योगा रहता है, वो एक्सरसाइजेस रहते हैं और थोड़ा नॉलेज शेयरिंग सब कुछ रहता है। उसके बाद हमारे एकेडमिक लर्निंग शुरू रहते हैं, उसमें रेमेडियल है, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग सेशन रोज रहते हैं। ओके, दीज आर हम यू हैव ऑलरेडी सीन आवर नेम्स, हमारे आप ऑलरेडी हमारी इंट्रोडक्शन हो गई है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे इधर पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले शुरुआत ऐसे हुई कि हमको मालूम है कि बच्चों को जब एकेडमिक्स में एक्सेल करना होगा तो बाकी के बोर्ड्स के थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, रिजिडिटी है, जहाँ पे वो नहीं पहुंच सकते हैं, उतना वो कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है उनको पढ़ाई और जो परफॉर्मेंस रहती है बोर्ड के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये मालूम पड़ा है कि अभी एनआईओएस बोर्ड जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल बोर्ड है, तो इसके साथ उनके एकेडमिक्स में बहुत फर्क पड़ता है एंड दे फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल टू यूज दिस बोर्ड एंड एक्सेल बिकॉज द सेकेंड पार्ट विच आई एम कमिंग टू इट कि चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड विथ वेरियस इंटरेस्ट। ऐसे है कि सब बच्चों को सब चीजें एक जैसे नहीं अच्छी लगती। सम स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छे लगते हैं, सम स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, सम लाइक साइंस, किसी किसी को मैथ साइंस की नहीं है, दे हैव नो इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं अच्छा लगा, उसमें परफॉर्मेंस नहीं करे और उसके बाद उनके बोर्ड के रिजल्ट्स में द फर्क दिखता है, बिकॉज देन दे डोंट परफॉर्म वेल और उससे उनको क्या होता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आ जाते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि ये हम समझ के लेते हैं कि इनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे इंटरेस्ट हैं, बहुत वेरिड है, वो सब हमको टैप करना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल्स है उसके साथ हमारा एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम भी हम रखते हैं। उसके बाद डिसाइड्स दैट उनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, हमको दिखता है कि उनके एकेडमिक्स में डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल इन एकेडमिक्स जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो अभी कौन से इंटरेस्ट आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में, ये सब हम उनको मदद करते हैं, गाइड करते हैं कि आप प्लीज ये सब्जेक्ट करना है, इससे आपको हेल्प होगी आपके आगे के करियर चॉइस में। ये सबकी मदद के साथ ही हम आगे जाते हैं। अभी हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम तो बहुत ज़्यादा है, हमने ऑलरेडी बताया कि 8 to 10 ईयर्स का एक्चुअली हमारा बहुत सक्सेसफुल जर्नी है। 35+ हमारे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं। और हमारी एक इधर पे आपको एक मैम दिखेंगी, मिसेस शुभांगी पाकनेकर, वो जो एक्चुअली मराठी मीडियम भी सिखाती हैं। तो हमको मालूम है कि इधर पे महाराष्ट्र में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मराठी मीडियम में उनको ये बोर्ड में सब उनको पेपर्स देना पड़ेगा। तो वो वी हैव केप्ट दैट इन माइंड। और वैसे हमारे पास एक एक्सपर्ट है, शी इज़ द हेड ऑफ द मराठी डिपार्टमेंट, और वो
जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो बाद में आपको डेफिनेटली बताएंगे। अभी ये छोड़ के आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज 45 प्लस स्कूल्स के साथ हमारा एसोसिएशन है। हमारे पास थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हीलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑल ओवर पूना। हम ये सब हमारे एसोसिएट्स हैं जो हमारे सब कोई भी बच्चों, एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को कोई भी तकलीफ होगी इन एनी फॉर्म एट ऑल, वो सब इधर पे कोई ना कोई सब जगह पे हम उनकी मदद लेते हैं। दे आर देयर टू सपोर्ट अस थ्रू आउट। तो अभी हमारे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला ऐसे है कि वी हैव एनआईएस बोर्ड का पूरा नॉलेज और पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो कैसे चलता है। हमको ये भी मालूम है कि वेबसाइट पे बहुत लोग जाते हैं पर उधर पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि वो कहाँ पे कौन सा लिंक क्लिक करना, कैसे फॉर्म भरना, कैसे रजिस्टर करना, मैं कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, मुझे एम आई अलाउड टू टेक दिस और नॉट, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसलिए हम एकदम स्मूथली हम आप सबको गाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। मतलब हम रजिस्ट्रेशन से उनके रिजल्ट्स मिलने तक हम पूरा पूरा गाइड करते हैं। सो इधर पे हमारा एनआईएस सपोर्ट है। अब ये कौन कौन सपोर्ट है, ज़्यादा करके हम देखते हैं कि सीबीएसई वो बोर्ड एक थोड़ा टफ बोर्ड है और वो सिलेबस सब लोगों को नहीं पसंद पड़ता, सब बच्चों को। तो वो दे लुक आउट कि एनआईएस बोर्ड के साथ हमारा थोड़ा सा एकेडमिक्स में ज़्यादा हमारा विल बी मोर रिलैक्स्ड, थोड़े से खुशी से आप स्टडी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल रहता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। वो ट्रेनिंग उनकी चलती है, दे अटेंड टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। उस टाइम रेगुलर स्कूल इज ऑफ नो यूज टू देम। तो उनकी एकेडमिक्स कैसे कंप्लीट करना, ये बोर्ड है, ये अलाउ करती है। और ये हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, हम उनको उनके पोर्शन कंप्लीट करते हैं उनके साथ, और फिर वो डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड इवन 12th स्टैंडर्ड का वो पूरा एनआईएस बोर्ड से क्लियर करते हैं, दोनों भी उनके 10th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल्स। हमारे पास एफिलिएशन है, हमारे पास फैकल्टी है, प्लस हमारे पास स्किल ट्रेनिंग हम लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं 12th और 12th, पोस्ट 10th एंड 12th के साथ। फिर हमारे पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी है। ये पूरा की पूरा हमारा एक होलिस्टिक एजुकेशन हम देने की प्रयास कर रहे हैं। उसमें लाइफ स्किल्स हैं, वैल्यू एजुकेशन रखते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारा एक स्ट्रेस रहता है कम्युनिटी लिविंग के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट हम वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई वुड रिक्वेस्ट हर्षदी मैम टू प्लीज टेक ओवर द रेस्ट ऑफ द मेरिट्स एनआईएस बोर्ड की क्या क्या है। ओके, over to you, Hashari ma'am. Yeah, thank you so much. So now many of you must have a lot of questions. So let's start. Who is the board for, which is already covered, but I would add more to it. So basically children who cannot come to school due to their physical problems. It could be that there could be a challenge which they are facing. There are children who have medical limitations who are not supposed to venture out. So that is where they can sit at home and study. Children who have issues like visually impaired होते हैं. We have children who are challenged for various reasons. They can take this board. Now they can give the exams in Hindi, they can give the exams in Marathi and in English. So these are the three mediums through which the children can give the exams. Also, these children can choose the subjects out of the 14 subjects. In detail, we will take this up in the second slide. Now, these children can do their education from first standard to 12th standard, sitting at home if they cannot go to any school, or they can take the help of tutors and complete their education just by enrolling online in the different programs of NIOS. And after 12, they can come into the mainstream and continue their graduation, or they can also do graduation through IGNU in the same way as they have done their education till 12th through NIOS. Secondly, now your question is this recognized? Yes, because this comes under the central government authority, and central government board is the central government is the highest authority in India. So if the children go anywhere outside the world और उनको अगर पूछा कि आपका बोर्ड हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो it is like saying that I'm not accepting India. So up till now, I've been working almost for 10 years and it has never happened
The children have gone abroad, studied, and some will even stay there now. So we have never had issues with the any of the countries if they want to go outside. Can they go to any state? That yes, that's the reason the name itself is national. So anywhere in India they can go. They can go to Goa, Diu, Daman, Andaman, Nicobar, even any of the union territories to Jammu and Kashmir today, which was not the case before. So now everywhere the board is acceptable. Now, the most beautiful part of this board is जनरली 8 out of 10 चिल्ड्रन उनको मैथ्स एंड साइंस बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि मैथ्स और साइंस ये एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिसके जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक एबिलिटी आपको होना चाहिए, एक हुनर होनी चाहिए. अगर हमने बाकी सब्जेक्ट्स लिए लाइक हिस्ट्री या मे बी कम्युनिटी लिविंग या इंडियन हेरिटेज या ज्योग्राफी, इसके लिए एक अलग एबिलिटी चाहिए, तो वो हम सब में होती है. लेकिन मैथ्स या साइंस ये मेन लॉजिकल एबिलिटी है. और दूसरी चीज, बच्चा होशियार होता है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं होता. अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो शायद वो पढ़ाई में ही इंटरेस्ट ना ले. एंड मैं थोड़ा सा एक बोल्ड स्टेटमेंट करना चाहूंगी यहाँ एज एन एजुकेटर की, पढ़ाई ये कोई अच्छी लगने वाली चीज नहीं है, क्योंकि पढ़ाई खुशी नहीं देती, खेलना खुशी देती है. और मैथ्स से तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमको आधे समझ ही नहीं आते और ये महसूस किया जाता है कि आप कहीं कम हो, और जहाँ कोई कमी दिखाई देती है हमको हमको नहीं अच्छा लगता. इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड पेरेंट्स के maths and science are the subjects. Why are they considered tough? Because the children may not like them. Yes, I also give a benefit of doubt to the children, saying that the teachers may not be making it interesting, because chalk and talk method से teachers सिखाते हैं. If you want to teach rains, you have to get the children out on the terrace. You cannot draw the rain on the board. तीसरी चीज, since it requires a little more attention and hard work, children don't like it. And fourth is, children do not want it because generally actually parents और उनके झगड़े इसी ऊपर होते हैं कि मैथ्स में कम मार्क्स आए, साइंस में कम मार्क्स आए, और अगर आपका क्या होगा अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं किए, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे यहाँ दो ही करियर मानते हैं हम, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है. सो द बेस्ट पार्ट इज हम मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं. एंड आप ये बोल के देखो, बच्चों के चेहरे पे इतनी सुंदर हंसी आती है ना, and that's all that we should really vouch for. So then you will say which subjects can we take. So Trupti ma'am will tell you the list of subjects that we can take. So you can drop maths and science and take subjects in 10th also, any 5, and other in 12th also, and you can finish your 10th and 12th happily with good marks. Another thing is the passing is 33%. And only 60% portion is needed to study. 40% is for tutorials, assignments which we submit online, and उसके बाद only 60%. So I don't know parents if you are getting the point, just calculation कीजिए आप. 60% का portion है और उसके ऊपर 33% आपको लगते हैं पास होने के लिए, और गवर्नमेंट आपको असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स के ऊपर, आपके ऊपर है आप कितना अच्छा काम करते हैं. पर अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो 20 के 20 मार्क्स मिल सकते हैं, तो बच्चे को एवर ही 53 मार्क्स मिलते हैं. तो माय एक्सपीरियंस इज, अगर आपने लिखा तो फेल होना ही बहुत डिफिकल्ट है. तीसरी चीज, समथिंग वेरी वंडरफुल एंड आई एम सो हैप्पी द बोर्ड इज डूइंग इट. 50% पेपर इज ऑब्जेक्टिव एंड 50% पेपर इज सब्जेक्टिव. तो अगर बच्चे ने उसमें से भी 50% से 60% पोर्शन है और हमको 80% 80 मार्क्स का पेपर है 20 के असाइनमेंट से, तो 50% में भी बच्चा पास हो सकता है. तो जो बच्चे लिखते नहीं, देयर आर चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, ADHD, जिनको थोड़ी डिसऑर्डर्स हैं. आजकल ये बहुत आम बात होने लगी है कि बच्चों को IQ इश्यूज है, मेमोरी इश्यूज है, बच्चे लिख नहीं पाते, बच्चे याद नहीं कर पाते. तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही सहूलियत है, क्योंकि ये बच्चे 50% ऑब्जेक्टिव के ऊपर पास हो सकते हैं. जो बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट है, न्यूरो डाइवर्जेंट मतलब जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि ऑटिज्म है, ADHD है,
तो वो जाके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी असेसमेंट बच्चों से करवा लो। उसके बाद आपको यूडीआईडी कार्ड मिलता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो ये नंबर मिलने के बाद जब आप गवर्नमेंट के एग्जाम सेंटर्स पे जाते हो, दैट इज जो पूना में है, कोथरूड में रीजनल ऑफिस है, वहां आपको राइटर मिल सकता है, आपको ज्यादा टाइम मिल सकता है, आपको सुपरवाइजर मिल सकता है। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है लिखाई में, उनको तो टाइप करने की भी सहूलियत गवर्नमेंट ने दी है। तो इसीलिए ये बोर्ड इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है और इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कौन से भी बच्चे, ये यहाँ मैं नॉर्मल, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई नॉर्मल होता ही नहीं, पर जिन बच्चों को ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, जो स्पोर्ट्स में है, वो भी यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन हु हैव सेरेब्रल पाल्सी, चिल्ड्रन हु हैव मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, उनके लिए भी ये बोर्ड है। और रूरल में जो बच्चे बैठे हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते पर मराठी में, जैसे महाराष्ट्र में मराठी चलती है, मे बी गुजरात में हिंदी चलेगी या गुजराती मीडियम भी चलेगा, सो दीज चिल्ड्रन कैन एक्चुअली गिव द एग्जाम्स इन द रीजनल लैंग्वेज। सारी जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स है, ये दिल्ली से आती है। इसकी एडमिशन ऑनलाइन होती है, इसके एग्जाम्स केंद्रीय विद्यालय जैसे सेंटर्स में होते हैं, बाकी एग्जाम्स के जैसे। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, टीएमएस, ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं और ये बढ़िया तरीके से इनकी साइट चल रही है। मैंने रेयरली देखा है कि कभी साइट में प्रॉब्लम है। इतने लाखों लोग पैसे भरते हैं, एडमिशन लेते हैं, असाइनमेंट्स डालते हैं, पर साइट का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। So this is one very nice. I mentioned here concession for CWS in children with special needs, neurodivergent, gifted and talented children. तो उनको सहूलियत मिल जाती है। Lastly, there is no age bar. The beautiful part is once you are 14 past, once you are 14 years old, you can register on the board. Then your registration is valid for 5 years and you get 9 attempts to pass. इतना आजकल मैंने किसी को भी नहीं देखा है इतने सालों से कि 5 साल लगे। हाँ ठीक है, एक आध दो बार बैठे हैं बच्चे। Now what happens is there are two public exams. One is in April and one is in October. And all around the year, other than June and December, there is an exam called ODE, that is on demand exam, where children can give the exam papers. Now what happens is जनरली जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, उनकी टूर्नामेंट्स होती है, वो मिस कर जाते हैं, किसी की बीमारी है, किसी, अभी ऐसे भी मेरे पास बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, जिनको ट्रीटमेंट चालू है, तो वो एग्जाम नहीं दे सकते, तो दे कैन गिव द एग्जाम इन द नेक्स्ट मंथ एंड देन यू गेट द रिजल्ट। आप कितनी भी बार एग्जाम दो, आपकी शीट एक ही होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप 4 बार बैठ चुके हैं, सिर्फ देने वाले को पता चलती है बस। So that is the beauty again of the board, कि there is a consolidated mark sheet which comes, and very importantly, the child can give the exam again if he feels that he has scored less marks. तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि अगर मुझे मार्क्स कम पड़े तो मैं फिर से बैठ सकती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बच्चा आया था जिसको कमर्शियल पायलट बनना था, सीबीएसई में उसके मार्क्स कम आ गए और उसको एडमिशन नहीं मिली, पापा ने पैसे भरे थे, तो वो फिर हमारे पास आया। उसको 2 सब्जेक्ट्स की टीओसी मिले। टीओसी मीन्स जो ऑलरेडी पास कर चुका था सीबीएस में, उसके मार्क्स ट्रांसफर हो गए। उसने 3 इजी सब्जेक्ट्स लिए। इजी सब्जेक्ट्स मतलब से डेटा एंट्री, जहां सिर्फ 40% ही 40 मार्क्स की ही थ्योरी है। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक पेंटिंग, फोक आर्ट, डेटा एंट्री। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स जहां आपको 40 मार्क्स की थ्योरी देनी है। तो उसने 2 सब्जेक्ट्स इजी लिए, एक मैथ्स लिया, एग्जाम दी और उसको 80s में मार्क्स मिले और वो बच्चा अभी कमर्शियल फ्लाइंग कर रहा है। सो कहने का ये मतलब है कि मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बोलोगे कि एज इज इट एट पार विद द अदर बोर्ड्स, 100%, बिकॉज इट कम्स अंडर द सीबीएसई गैलोर इटसेल्फ।
Secondly, it is at par with all the boards because these children appear for NEET, they appear for NSG exam, they appear for CET. So all the competitive exams में ये बच्चे बैठ सकते हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने उनका स्टैंडर्ड, उनका सिलेबस, उनका स्कोरिंग ये एट पार रखा है with all the boards. So now you might ask the question that if the board is so nice, then why aren't the schools adopting them? Yes, we also asked the same question when we went to the schools. So the government says that you cannot run a affiliated school with NIUS, but yes, you can help the students. So there is no commercial, you cannot use, you cannot actually commercially get affiliation like CBSE, ICSE, SSC. Therefore, you will see that there are many tuition centers all over the country where they are helping the children with the NIOS subjects, like we are doing, and we are doing a lot of work with all kinds of children, because with neurodivergent children we have a special group where we need to give them lots of therapies, and also with other children we are giving almost all the subjects which the children take, right from Hindustani music, Veda Dhyayan, and military studies, library science. So you name it, and we are giving travel and tourism. So this was from my side, a consolidated feedback on the merits of the board. To end up, I would say मेरा बस चले तो मैं पूरे भारत के लिए एक ही बोर्ड रखूं NIOS. With that note, I hand over to Trupti ma'am. Okay, thank you, ma'am. I'll take to the next slide. This is generally how it is explained. ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे अभी, ये ब्लॉक 1 इसके डेट्स हैं, विच इज ये जो डेट्स रहते हैं ये अप्रैल और मई के डेट्स हैं. तो इसका फी के टाइमिंग कब रहते हैं, विथ लेट फी, विदाउट फी, और इसका लास्ट में आपने कॉलम जो देखा उधर पे मार्च अप्रैल अभी का जो आया था उसका मैंने अभी फॉर एग्जांपल एक दिखाया है, बट जनरली ये डेट्स पे आते हैं सबके. ओके, ब्लॉक 2 जनरली मीन्स कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम आप एग्जाम्स दे रहे हो. सो दे 2 विंडोज हैं विच इज ऑफिशियली बाय द बोर्ड. हमको मालूम है बाकी के बोर्ड्स के साथ कि अक्टूबर मतलब तुम रीअपेयर हो रहे हो विच इज लाइक यू फेल्ड एंड देन यू आर अपेयरिंग अगेन. ये वैसे नहीं है. दिस इज अ न्यू स्टार्ट. यू आर गिविंग अनदर चांस, नॉट अनदर चांस. इट इज ट्वाइस इन अ ईयर, द सेम एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर. ओके, सो ये डेट्स हैं, ये हम पूरे शेयर करते हैं. जब भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, तो वी मेक श्योर कि उनके ये डेट्स मिस नहीं होते हैं. ये हम फैसिलिटेट करते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा कि कब लास्ट डेट है, वी गिव द रिमाइंडर्स. ये हमारी ड्यूटी रहती है कि आपको टाइमली रिमाइंडर्स देना कि अभी लास्ट डेट है, 2 दिन के बाद बंद होने वाला है आपका. उसके बाद आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी. कुछ मदद चाहिए तो हम करेंगे आपके लिए. ये पूरे की पूरे हम मदद करते हैं. ओके, सो ये जैसे जैसे निकलता है एवरी ईयर का वी पोस्टेड ऑन आवर रिलेटिव जो कुछ हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप से उसके साथ आता है. नाउ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं. एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू अपीयर फॉर द एग्जाम, वी शेयर दिस लिस्ट. ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है बोर्ड के साथ, दैट इज द NIOS बोर्ड के साथ. हम सिर्फ मदद करते हैं, वो बोर्ड को ये सब डॉक्यूमेंटेशन लगेगा. सो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब वी विल गिव यू द लिस्ट, वी विल गिव यू अ रिमाइंडर कि दिस हैज टू बी यूज्ड सो दैट इफ यू हैव टू रजिस्टर विद द बोर्ड. ओके, तो इसके साथ इसके बारे में कुछ भी आपको मदद चाहिए, एनी डिटेल्स यू वांट, डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, वी विल हेल्प यू फर्दर ऑन विद दिस. अभी सब्जेक्ट्स कौन दिखा रहे हैं, ऑलरेडी हर्षाली मैम हैज ऑलरेडी मेंशन अ फ्यू सब्जेक्ट्स, बट इधर पे इफ यू सी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट है और राइट हैंड साइड पे लिस्ट है. लेफ्ट पे है सेकेंडरी कोर्स विच मीन्स 10th स्टैंडर्ड, 10वीं के लिए. अभी 10वीं के लिए दीज आर द सब्जेक्ट्स हम सिखाते हैं ऑलरेडी, पर ये छोड़ के और सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. उसमें से आपको कुछ अलग चाहिए होगा तो हम 1 और 2 स्टूडेंट्स के लिए वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर फैकल्टी. अभी ये हमारे साथ ऑलरेडी एक्टिव क्लासेस चालू हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन भी चालू है. इसमें से जो सब्जेक्ट्स के लिए इवन पेंटिंग में प्रैक्टिकल्स लगते हैं वो भी हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं. सो पेंटिंग जैसे एक सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी का इज ओनली 40 मार्क्स, 60 मार्क्स उसमें से प्रैक्टिकल रहता है.
फिर भी हम प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन सिखा सकते हैं, और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन करके भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. डेटा एंट्री ऑपरेशंस ऑल्सो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो ये सब चॉइसेस हैं. सीनियर सेकेंडरी विच इज 12th स्टैंडर्ड, इसमें थोड़े कॉमन हैं, बाकी के थोड़े अलग हैं. अभी और एक ऐसे हैं, अनदर वेरी नाइस पार्ट ऑफ द बोर्ड इज कि आपको ऐसे समझो, ऐसे लगा कि 10th में मैंने मैथ्स एंड साइंस नहीं लिया था क्योंकि मेरे को डिफिकल्टी लग रही थी, बट आफ्टर आई रीच 17 मुझे ऐसे लगता है कि आई मे टेक अप अ कोर्स, आगे एक टेक्निकल कोर्स जहाँ पे मुझे मैथ साइंस लगने वाली है. तो आफ्टर 10th ऑल्सो यू कैन स्विच ओवर टू साइंस सब्जेक्ट्स. ऐसे नहीं है कि आपने उधर पे नहीं किया है 10th में, इसलिए अभी 12th में आप नहीं कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली द केस विद अदर बोर्ड्स. अदर बोर्ड्स क्या बोलते हैं कि आपने 10th में नहीं किया था, आप अभी 11th 12th में नहीं ले सकते हैं. वैसे इधर पे नहीं है. यू कैन चेंज सब्जेक्ट्स आफ्टर यू फिनिश योर 10th. सो ऐसे लगता है कि यू वांट इजियर सब्जेक्ट्स 10th के लिए, उसके बाद नाउ यू आर रेडी टू टेक अप द 12th स्टैंडर्ड का थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन. यू आर ऑल्सो ओल्डर, रिमेंबर दैट टाइम एज अ स्टूडेंट वो बच्चे ज़्यादा थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं ऑलरेडी. उस टाइम उनको थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है, उनकी समझ भी ज़्यादा बढ़ती है. सो दे आर रेडी टू टेक अप अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक उस टाइम. तो उस टाइम आप बदल सकते हो. तो उधर पे आपने देखा है इतने अच्छे ऑप्शन है. अभी मैंने इधर पे इतना ही लिखा है, पर आप मैंने जो पहले स्लाइड में आपने ऑलरेडी आई हैव शेयर द वेबसाइट. आप उस वेबसाइट पे गए तो आपको वो वेबसाइट पे और ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे. उसके यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस कि हमको ये छोड़ के हम ये एक अलग सब्जेक्ट हमको सीखना है 12th में. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. अभी इसके आगे आ जाएंगे, ये सब हम इंग्लिश में सिखाते हैं. Now, because we also teach Marathi medium, so I will now request our Marathi medium head teacher, Mrs. Shubhangi Paknikar. She will tell कि कौन से subjects हम मराठी में ले सकते हैं with the NIS board. Shubhangi ma'am, over to you. Yes, ma'am. Good evening, everybody. मराठी साइड के लिए मराठी तो है ही, उसमें लैंग्वेज, होम साइंस है, इंग्लिश है, जिसको साइंस मैथ्स में भी 10वीं कर सकते हैं वो भी मराठी में है. सोशल साइंस है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज लाइक हिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, डाटा एंट्री ऑपरेशन यानी डीईओ हम कहते हैं, अकाउंटेंसी है. तो ये जो सब्जेक्ट्स है, जो डेटा एंट्री वगैरह, वो सेम ही मराठी, यानी जो वर्ड्स है, यानी जहाँ पे कंप्यूटर शब्द है वहाँ पे कंप्यूटर ही यूज करते हैं. तो ऐसा सेम ही मराठी वो सब सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छा उन्होंने डिजाइन किया है ये जो बुक्स है वो. तो अच्छी तरह से आप इसमें पढ़ सकते हो. अगर मराठी मीडियम में भी आपको 10वीं पास करना है, 12th पास करना है, तो ये सब्जेक्ट्स आपके लिए फायदेमंद है. तो इसमें कुछ में प्रैक्टिकल्स है और कुछ में प्रैक्टिकल्स नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल्स भी मराठी में, आपके सवाल आपको मराठी में ही पूछे जाएंगे. तो ये मराठी मीडियम की अच्छा एक खासियत है. Okay, thank you ma'am. अभी what I would like to tell is ये सब subjects में जो कुछ आपके lessons में जो मदद लगती है, which is explanation of the lessons, उसके जो अंदर के जो question answers हैं, उसके ऊपर worksheets रहते हैं जो हम practice के लिए आप सब students के साथ हम share करते हैं कि उनकी practice और revision अच्छी हो. उसके हम टेस्ट लेते हैं so that आप खुद टेस्ट कर सकोगे कि आपको कितना वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ आया कि नहीं. और ये सबका असेसमेंट हम तो करते हैं so that we make sure that the child is ready for the exam. उसको हम 3 prelims देते हैं. 3 prelims before the main exam we give so that they can practice many papers. बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से उनका अच्छी तरह से रिविजन हो जाता है. We create the एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का माहौल हम क्रिएट करते हैं so that जब बच्चों को वो they shouldn't get overwhelmed, कि उनको ऐसे एंजाइटी आ सकती है कि ये एग्जाम का जो एनवायरनमेंट रहता है वो थोड़ा टेंशन क्रिएट करने वाला होता है. सो वी मेक श्योर दैट दे बिकम सो कंफर्टेबल कि उनको पैटर्न समझ में आ गया है. उनको इट इज जस्ट 3 प्रीलिम्स के बाद और एक प्रीलिम ही दे रहे हैं ऐसे उनको लगता है.
सो अभी तक तो हमारे पास वी हैव गॉट दिस फीडबैक कि मैम आपका प्रीलिम वाज टफर देन द एग्जाम और हमको इजी गया. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू सो दैट उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है. ओके, आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे असेसमेंट्स हैं. हर्षाली मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द असेसमेंट्स, हम कैसे लेते हैं? Yes, thank you, ma'am. Basically, before I go ahead to the assessments, there's some things which just came to my mind since we have experienced this with many of the parents. First of all, shifting from conventional board to NIOS board is not something that is one step down or a compromise. इसमें कोई कम चीज वाली बात नहीं है. या लोग क्या कहेंगे कि हम हमारा बच्चा NIOS से हो रहा है, तो जैसा आपका बच्चा SSC, CBSE, ICSE, IGSE, वैसे कैम्ब्रिज, वैसे ही NIOS से. ये विश्वास हम पेरेंट्स को होना चाहिए कि हम बस एक अलग धारा हमारे बच्चे के लिए चूज कर रहे हैं. अदर आपके बच्चे बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आपने उनके लिए बोर्ड चेंज किया ताकि वो खुशी से पढ़ सके और पढ़ाई उनका एक अच्छा अनुभव होगा लाइफ में, ना कि एक बुरा सपना बन के रहे कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था और हमने मार खाया, डांट खाई. तो ये एक चीज है. दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एक्चुअली महाराष्ट्र में 1.5 लाख होम स्कूलर्स हैं जो इस बोर्ड के ऊपर ही अपना फाइनल एग्जाम्स देते हैं. 14 बरस तक ये लोग घर में पढ़ते हैं. पेरेंट्स उनको अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं. कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कोई टेक्निकल साइंस पढ़ रहा है, कोई आर्ट कर रहा है, कोई गाना पढ़ रहा है, कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा है. और फिर जब 14 बरस के होते हैं, दे गिविंग द एग्जाम एंड दे गो बैक where they want to go. So before I go to the assessments, that's what I thought I'll mention it to you. कि parents don't have this fear कि मेरा बच्चा कहीं कम ना पड़ जाए. नहीं, आपका बच्चा सबसे आगे जाएगा. आप NIOS बोर्ड पे जाके देखिए, सारे ओलंपिक विनर, सारे स्पोर्ट्स, सारे बच्चे इन लोगों ने स्पोर्ट्स से जो आगे गए हैं NIOS बोर्ड का ही सहारा लिया है. और वैसे बहुत सारे नेम्स है जिन्होंने मना किया है गूगल पे अपना नाम डालने को, उसमें से एक है सचिन तेंदुलकर ऑल्सो. So coming back, let's talk about the NIOS assessments. तो आप बोलेंगे कि अगर मैंने ऑनलाइन एडमिशन ली तो मेरी डायरेक्टली मुझे पी देना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे पब्लिक एग्जाम देनी पड़ेगी. तो ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चे को असेसमेंट चाहिए. तो ये चीज एक होती है कि ये कमी हम पूरी करते हैं. सो जहाँ बोर्ड की जो खामियां हैं वहाँ हम सपोर्ट करते हैं. So where the assessments cannot be done by the board directly says you give you pay us a very small sum of 1,500 for the girls, 1,800 for the boys. You get enrolled. The books will come at home. If the books don't come, we have soft copies. आप उसकी photocopy निकाल लो and you study and give the exam. But then it is not so easy because there are numerous subjects which are very different to the students, though वो कर पाते हैं. So we have these assessments where we have designed papers, especially for the children, for units, for terminals, for final exams, and as ma'am said, for the prelims. And children can make use of it. They can take the soft copies and they can get it solved, and we will correct it for them, and we will see that the teachers also give a feedback. At the same time, there are portfolios. That is, you have to make drawings for painting as a subject, for folk art as a subject. So we actually see that you complete the portfolio. जिसके लिए 60 marks का weightage है. So that also we do it. So actually, if we prepare the child for the exam, it becomes very easy because we focus on micro learning. कि उसको especially if I'm talking about sports kids, the kids actually sit on the beach or sit at the hall where they are playing, and between the breaks they actually study the small notes and they have passed on with flying colors. दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों का पेस थोड़ा कम है, जिनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है या उनकी समझ थोड़ी सी अलग है, तो उनको हम ऑनलाइन के हिसाब से सिखाते हैं वही टॉपिक. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज 14 में से कौन से 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये हम बच्चों को पहले ही पेरेंट्स के साथ बैठ के समझाते हैं उनके लाइकिंग के हिसाब से. एक होता है बच्चे का इंटरेस्ट और एक होता है बच्चे का पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब उसका IQ, उसका जेनेटिक इनहेरिटेंस जो होता है वो जो लेके आता है नेचुरली,
और एक होता है इंटरेस्ट के उसको शायद मैथ्स पसंद ना हो या मैथ्स पसंद हो पर उसके लिए उसको हुनर ना हो, तो हम वो भी लेते हैं क्योंकि बच्चा फिर काम करता है अगर उसको सब्जेक्ट पसंद है तो। सो हम 5 सब्जेक्ट्स उसके लेते हैं। बोर्ड की और एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए और उसको आपको लगा कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट नहीं करना है, मुझे पेंटिंग नहीं करना है, मुझे कंप्यूटर्स नहीं करना है, तो आप 2 महीने में 3 महीने में और एक दूसरा सब्जेक्ट लेके वो 5 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो। तो आइडियली आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, उसमें से 5 कंपल्सरी है, आपका परसेंटेज 500 के ऊपर आता है। सो ये जो इवैल्यूएशंस है, असेसमेंट है, दैट इज एब्सोल्युटली वी हैव क्रिएटेड अ lovely backup. My teachers have written books. They have developed a soft copies of all the lessons. We are also trying to develop audio notes for the children who have the audio challenge, and the children who are visually impaired, there are some people who are already working on the braille copies, and now there are laptops which also gives the audio notes. So laptops also have this software which is there. So हमारा ये प्रयास है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी बहुत दिक्कत है फिजिकली, उनके लिए हम ये इनका जो पूरा जर्नी है ये अच्छी तरह से उनके लिए डेवलप करें. So we connect all the, you all are doing wonderful work, and Kalyani ma'am, please let us know what best and how we can help the children, because the whole initiative of Ankuram is for helping the children. So I think with this we can throw the forum open, and I'm back to WeConnect, and ma'am, please take over. Thank you so much. Trupti ma'am, do you want to add anything? No ma'am, yeah, absolutely fine. I think we can start discussing. We've already given a lot of information. Abhi, let's see what the questions are, and then we'll listening. I'll stop sharing for now, and we'll come back to open sharing, our open forum now. Thank you. Can I just make few comments, please? Just, Yes, ma'am. सगळ्या पालकांना मला मुद्दामून सांगायचं आहे की आपली मुलं अभ्यासात मागे पडतायत. स्टुडंट्स आर derailing. We know that, but we don't accept it. So somewhere this is when you realize it, whether it is in 3rd grade or 5th grade or 7th grade, whatever is there, abhi bus, we can't handle it. This is the time to change the gears, switch the gears. And this is something is stressful for parents also and stressful for children. We have to accept. Now, Government of India or, in disability sector, we keep talking about shadow teacher dene chahiye, support system honi chahiye, regular school mein and all. Reality is there is nothing in this kind of thing. 1 or 2 school may be exception, but reality is this is not. And actually school dropout rate is increasing because of all this. 1st to 3rd grade mein, yesterday only I got those statistics, only 2% children are dropouts, because 1st to 3rd or something is a foundational literacy, पायाभूत साक्षरता. तेवढं लिहायला वाचायला शिकवलं आपण की आपल्याला वाटतं आपल्या मुलांना यायला लागलं, म्हणून तिथे 2% आहे. नंतर 8वी पर्यंत गेल्यानंतर तोच आकडा 7% होतो, म्हणजे 7% ड्रॉपआउट्स होतात. आणि त्याच्या पुढे जे आहे म्हणजे 10वी 12वीच्या पर्यंत पोहोचतच नाहीत, आणि स्कूल ड्रॉपआउट्स हे 14% आहेत. आता खूप नंबर मोठा आहे. आणि दिस इज ऍप्लिकेबल टू ऑल, म्हणजे नॉर्मल हिअरिंग चिल्ड्रन आहेत, बाकीचे सगळे आहेत, खूप कारण आहेत त्याला. पण चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इन दॅट, आणि वी हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. समवेयर वी कीप टॉकिंग, वैसा तो होशियार है बट वैसा तो ठीक है बट why वैसा तो. Be proud about your child, whatever he is doing and whatever he is saying. This is very important. So there is, you don't feel sorry कि हम NIOS जा रहे हैं. That is not, it is for children. It is definitely made for you, families also. आपका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा कि जब आप सोचते हैं. पेस अच्छा है, रिपीट आप दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट्स, और क्या चाहिए. यानी every year suppose you decide only take 2 subjects, then also is doable. So yes. Wonderful. All the thing, may I keep saying we want a happy child.
आपला मुलं आपला मूल मुलगी हे नेहमी आनंदी राहिले पाहिजेत आणि त्या आनंदाकरता शिक्षण हा अडथळा होता कामा नये. Barrier should not be the formal education. At the same time, we want to walk through that path because without that skill development will not happen. Self-reliance will not be achieved. So for all this purpose, we have to walk on this road. Now it is made so easy. So parents, please think about it. There is nothing wrong in it. You can contact these both the professional ladies, expert, have one-on-one discussion and discuss your own problem, irrespective of your place of residence. Now, I have one question. Suppose in the 5th grade, I realize I want to switch over. So, but I want to keep my child in regular school because for the socialization. Is it doable? Yes. Or he has to come out of 5th standard, you can keep the child in the school. You need not follow any NIOS. I would say all the students, all the parents, till about 5th and 6th, you can keep the child in the school for social skills, for getting that environment where many children are there. Then they have annual functions, sports, and picnics. After that, now you start focusing on academics after 6th standard. सो बेसिकली मॅम आमच्याकडे जे होमस्कूलर्स असतात जे 5वी 6वीत आहे वी आर स्टार्टिंग अ क्लब वेअर दे विल हॅव देअर ओन फोरम, पण अभ्यास ते त्यांचाच करतात. सो यू नीड नॉट ड्रॉप आउट अ स्कूल. बट लेट मी ऍड ऑन टू युअर क्वेश्चन ऑल्सो. दो द चाइल्ड हू डझंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल अँड कॅन ही डू NIOS, then yes, he can. Government says you study whatever you want. After 14, you come for 10th. And if you want a registration, you feel that no, I should get a government authority registration, then there is a OBE program, what is Open Basic Education Program, from first standard to, rather I would say 5 years to 13 years. Either standard nasta 13 years, and you register with the mentioned centers. Say in Pune we have Symbiosis. So you register with them and त्यांचा program follow करून you get the certification. If you feel that you have a transferable job and the other schools might ask for a certain validity that your child is getting educated or not, so that is one thing. Otherwise you can have a informal learning or open schooling. जसं आता आपण open schooling म्हणजे unschooling. So we have where children learn whatever they want. They can also learn till 13 years. So not necessarily that he has to drop out from school. He can drop out at 13 or 14 years. And NIO is mainly for the homeschoolers, where they can follow the program which is mentioned by the board. So in other words, suppose my child is in regular school, but he's following homeschooling program. Am I right? No, he can either be a regular child or he can be a homeschooler. यहाँ पे कि एकच मैम. क्या हम ये हिंदी में बोल सकते हैं? सॉरी मैम, क्या हम ये हिंदी में बोल सकते हैं? सॉरी इतने रेगुलर स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है 5th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में, मगर मुझे होम स्कूलिंग का बेनिफिट लेना है. सो अटेंडेंस रेगुलर स्कूल में है, करिकुलम ओपन स्कूल का है. ऐसे हो सकता है क्या? But the child will be unnecessarily pressurized. As it is, the school is enough for the child. So there is one program which he can follow. Either he can be a homeschooler or he can go to a regular school. So basically, NIO is for the... Yes, you can remove him from normal school and you can start the homeschooling program. And then you can take the help of the NIO's Open Basic Education Program, and he can learn at home and whatever you want to teach along with the OBE program. If he is in the regular school, then don't worry. Get best of that board, and then you can shift him when you feel that either there is a pressure or you want him to follow the NIOS curriculum. So ये प्राइमरी एजुकेशन बच्चे समझ लेते हैं, समझ लो 5th 5th और 6th ग्रेड के तक, मगर उसके बाद ही वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि टू मेनी सब्जेक्ट्स है या स्किल्स नहीं डेवलप हो रही है. और एडोलेसेंस में आते हैं तो पीयर प्रेशर भी बढ़ जाता है. दे आर आइसोलेटेड कि उनको फ्रेंड्स नहीं होते, काफ़ी चीज़ें हो जाती है.
बच्चे कहने लगते हैं कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है, तो उस समय समझ लो हमने स्कूल से निकाला और होम स्कूलिंग में डाला, तो भी हो सकता है, हो क्योंकि सकता है। सो होम हाँ, स्कूल, या यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। एज ग्रुप 6 से 14 तक कंपलसरी एजुकेशन है। ओके, सो ये मैंडेटरी है, तो यानी कहाँ तो भी मेरा बच्चा रजिस्टर होना चाहिए, वो रेगुलर स्कूल में होगा या होम स्कूल में होगा। मगर हम नहीं कहते कि स्कूल में से निकालो और घर बैठो, दूसरे रास्ते से चलो, मगर वो रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज मैंडेटरी, कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14। यही मैं क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि पालक यानी पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हम मेरे बच्चे घर बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, दूसरे रास्ते से पढ़ाई करेंगे। हाँ, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड वी हैव टू, हमें एक उद्देश्य, एक लक्ष्य रखना है, 12वीं तक लेके जाना ही है बच्चों को। 12वीं है नहीं, इसका मतलब है एक सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है अलग अलग, उसमें बच्चे कुछ करें, क्योंकि ये स्वयंता पूर्ण की बात कर रहे हैं। वो उनकी रोजी रोटी भी उन्होंने ही कमानी चाहिए, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करने वाले, वो उनकी जिम्मेदारी भी है। तो 12th तक तो हमें चलना ही है, मगर दूसरे रास्ते से। सो इज इट, एम आई क्लियर? या आई बिल्कुल होप। सही कहा कल्याणी मैम। हाँ, या वेल ओके, सेड मैम, यस। thank you, go ahead with your question. Just I wanted to bring this clarity, that's it, so thank नहीं you. नहीं, बहुत सही पॉइंट आपने लेके आए, और एक क्वेश्चन से हम काफी पेरेंट्स को आंसर भी मिल जाता है। तो अब हम आंसर्स, क्वेश्चंस मैं रीड आउट करूंगी। पेरेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो रेज करिएगा हैंड, मैं अनम्यूट करूंगी। तो मैम, पहला क्वेश्चन है सुनील जी का, वो कह रहे हैं कि कैन वी रजिस्टर फॉर मोर देन 14 ईयर ओल्ड, मतलब बच्चा 14 साल का है, क्या वो रजिस्टर कर सकते हैं? सी, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यू शुड कंप्लीट योर 14, उसके बाद आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड। फॉर 10th। अगर आपका रिक्वायरमेंट, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड भी हो चुका है, आप पास किया आपने, और आपको लगता है मुझे 12th करना है, और ऐसा हो गया कि आपके 2 साल का ब्रेक हुआ, कुछ हुआ, और आप 2 साल के बाद आपको 12th कंप्लीट करना है, तो यू कैन रजिस्टर। Okay. Is there an upper limit? There is no age bar. I have a lady who is 50 years old and she wants to complete a graduation. I just got a call. I said, आप कर सकते हो. Okay, No great. upper limit. there is the lower limit is 40, but upper limit कुछ भी नहीं है. I've had my driver's son who could not study, and he's at the age of 26 he's finished his 10th standard. अभी उसने खत्म किया है. At 10th standard अभी उसने किया because उसको basic certification चाहिए था 10th standard pass का. Okay. So that I is hope very much सुनील possible. जी, I hope सुनील जी आंसर मिल गया होगा। अगर और फॉलो अप क्वेश्चन होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। किरण जी का आंसर है, डू वी हैव ओनली ऑनलाइन स्कूल ऑप्शन फॉर NIOS? I didn't get the point where you mentioned it's affiliated to 45 schools. Yeah, so basically, as I said, we are a center where we help the children who are following NIOS board with different subjects. Now, since all over India, if you want to help the students, then the only medium remains online. Rather, if you see if you go to nios.ac.in, the Swayam platform is again online where they have videos where the government has tried to give the तो children the videos. अच्छा, audio ऑनलाइन ही videos. है, So ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मुझे लगता है online. पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मतलब ऑनलाइन है, हाँ। ऑफलाइन ओनली इन पूना। ऑफलाइन पूना में है आपका, ठीक है। यस yes. ओके, तो जैसे पूना में ऑफलाइन है, वैसे इंडिया में दूसरे सेंटर्स भी सिमिलर रहेंगे मैम? yes and I am trying my best कि दिल्ली में I am trying to connect to help the student parents in Delhi so they can get offline, so that we are also trying to help. And one point ma'am, Julie ma'am, you said, he mentioned कि what is the affiliation with 45 schools. This is very interesting. There is a very a very weird pattern that the Sorry, children ma'am, get admitted in. मैम हिंदी में बात करेंगे, सॉरी।
सॉरी सॉरी सॉरी। सो ऐसा हमने कोई बात देखा नहीं। है कि बच्चा जूनियर सीनियर में एडमिशन ले लेता है, और जब हाँ। एक 7th में या 8th में जब उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, स्कूल उनको बोलती है कि शायद आप आईसीएसई या आप सीबीएसई बोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप ना एक्सटर्नली बैठिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में वहाँ एसएससी को वी हैव अ फॉर्म 17 फॉर्म है, तो आप अलग बैठो, एक्सटर्नली बैठो, और आप हमारे हमारे स्कूल से मत बैठो, ताकि अगर 100% रिजल्ट लगना है तो वो लगते लगते रह जाएगा। अभी क्या होता है, ये पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं कि इतने साल मेरा बच्चा इसमें रहा, और 10 जब 10 तक की होने की बात आई, आप मेरे बच्चे को निकाल रहे हैं। तो अगर ये पेरेंट्स को अगर फेस करना पड़े, तो हम स्कूल्स को विजिट करके हमने उनको बोला है कि जब आपको लगता है कि कोई बच्चा 10th नहीं कर सकता, उनको प्लीज हमारा एड्रेस दीजिए, हम पेरेंट्स से बात करके हम उसकी 10वीं करेंगे, हम उसकी 12वीं के लिए मदद करेंगे। तो ऐसे हमने 45 स्कूल से हमारा कनेक्ट है, और मैं क्या बोलूं अभी, स्कूल्स निकालते हैं बच्चों को, और तब पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, और इतना उनको मतलब सदमा पहुंचता है। तब उनका लाइफ इजी करने के लिए मुझे लगता है जहाँ स्कूल्स का काम खत्म होता है वहां हमारा शुरू होता है। थैंक यू मैम आंसर करने के लिए। सुनील जी, आपको मैंने अनम्यूट करा है, आपको क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरा बेटी अभी 8th स्टैंडर्ड में है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इवन दैट स्कूल विच आई एम इन admitted, they are saying if she is not progress in 10th 8th standard, we have to remove from the school. So my Okay. question is, after 8th, can we take the admission in NIOS? यस सर, रादर 8 में बच्चा 14 इयर्स ओल्ड होता है, दैट इज एक्चुअली द टाइम वेयर वी कैन एनरोल and he can happily do his 10th standard. Sir, can I know the place from where you're calling? I'm in Pune itself. Manke ma'am is know very well me. Acha, okay, okay. So what I'm saying is, then if you want, we can go much more in detail and discuss the case. But definitely, sir, if the school is giving you this feedback, I would say that, as ma'am said, ki let's focus on the happiness of the child. Let him not sink into that feeling that I am no good and I cannot do academics well. We can definitely enroll him in NIOS and get his 10th done with flying colors. Yeah, sure. Thank you. Julie, Hina has raised her hand. Yes. Hina? जी आप मैम, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरी बेटी 7 और उसका मैंने एनआईओएस में ऑनलाइन एडमिशन कराया है, तो अभी अप्रैल में वो एग्जाम्स देंगी, बट उसके अभी तक के ना बुक्स आए हैं, हमने उसका टीएमए भी मतलब अपलोड किया है, तो वो भी नहीं आया है कि वो अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, ये कुछ पता नहीं जैसा हमको। तो इसमें क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो मैम, कौन से जगह से? हम महाराष्ट्र से है, यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ, यवतमाळ, ओके। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। टीएमए, नहीं ठीक है ना, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। आपने, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपने कहीं तो भी एनरोल किया होगा यवतमाळ के आसपास, या कौन सा कोई तो पूना का सेंटर लिया होगा, पूना लिया है आपने स्टडी सेंटर? सेंटर पूना नहीं आया है, जैसा सना का भी जो एग्जाम्स देंगी तो वो नवोदय विद्यालय करके हाँ। सेंटर आया है, यवतमाल में ही है वो सेंटर। अच्छा, और आप एक काम उसकी करना, ओपन या बुक्स तो जी मैम, मैम बोलिए। बुक्स तो नहीं आते, क्योंकि ये एक बैड एक्सपीरियंस है एनआईओएस बोर्ड का कि बुक्स नहीं आते, इसीलिए सॉफ्ट कॉपीज उन्होंने दी है, तो उसको फोटो कॉपी करके हम पढ़ सकते हैं। जूली मैम, इज शी इन योर ग्रुप? यू हैव हर, हाँ यू जी। नो हर, सो आई कैन गेट। हाँ जी। या सो इनकी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे भेजना आप, मे बी आई विल हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर हर, so then we can deal अच्छा। this separately and I try my best to help her.
क्या? तो हिना मैम, हम आपकी जो दिक्कतें हैं वो बात करते हैं आराम से अलग से, और लेट्स सी जैसे हम आपको बेस्ट मदद कर सकते थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि थोड़ा सा सना का इश्यू हो रहा है, हैं। क्योंकि राइटर चाहिए, ये सब बहुत सारी नहीं प्रॉब्लम्स आया है। ओके, थैंक यू मैम। नहीं, यवतमाल में हो इसीलिए डेफिनेटली विल डू समथिंग। या थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सो मैम, यू कैन टेल मी ऑल द डिटेल। यस यस। और किसी पेरेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर सकते हैं। जूली, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल मैं। हाँ, हाय एवरीवन। मेरा बेटा भी NIOS से 10th कर रहा था। 8th स्टैंडर्ड में स्कूल से ये सारे इश्यूज जैसे आपने बताया कि आते हैं, तो सेम वही सारी चीजें आई। तो 10th में उसने, यहाँ नागपुर में है वो, तो नागपुर से उसने 10th किया। बट आफ्टर मैं किसी को भी जब बताती थी NIOS के लिए, तो कोई अवेयरनेस ही नहीं था कहीं पे भी, स्कूल में भी। तो वो मुझे लगता है Yes. कि थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए ये चीज का कि क्या है। और नागपुर में अगर आपका कोई सेंटर है, तो अगर आप बता पाएंगे कि यहाँ पर सेंटर जाके ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो मुझे वो चाहिए कि और भी पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। ओके, नागपुर में है, अभी फिलहाल एकदम से याद नहीं है। I will definitely, there is one small, there is a center which is working, and it is working for all the other kids also and children who have difficulties also. So I will definitely, ma'am, मेरा number आप ले लेना, and should I put my number in the chat, ma'am, or will you send it to the parents You who need it? can put it in the chat. You can put it in the Okay. chat. Mahek is Okay. one of our center heads in Nagpur, so we will send her the details also. Yes. So I will definitely send you the name of the person and the name of the center. So please send me the details, and you will get offline help also. थैंक यू मैम। रागिनी जी, आपको Yeah. क्वेश्चन है? अगर आप पुणे में हो तो डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो। अगर आप ये बाहर हो पुणे के, तो डेफिनेटली हम आपको ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारी अभी नई बैच शुरू हो जाएंगी, तब तक हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे। और हमारे ग्रुप में अभी जैसे सेमिनार्स चल रहे हैं, पेरेंट्स क्वेरीज चल रही है, उससे आपको भी मदद मिल सकती है और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। सो जो भी आपको मदद मिले, वंस यू आर इन द ग्रुप, आप कौन सी भी हेल्प हमसे ले सकते हैं। आपका नंबर दे देना चैट में, तुर्ती मैम आपको ग्रुप में ऐड I will note the number and I'll add you to the, हमारे पास हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, एडमिशंस का ग्रुप है, जो अभी हम जब एडमिशंस की क्वेरीज आ रहे हैं उनको सब एक ग्रुप में डाला है। तो उसमें एनी क्वेरीज जो कुछ है, वी आर हैविंग रिपीटेड सेमिनार्स हम ले रहे हैं, जहाँ पे और थोड़े आपके क्वेश्चंस हैं, और फिर आपको एडमिशन भी मिल जाएगी, एंड वी कैन डेफिनेटली टेक ओवर उसके बाद, डेफिनेटली। If you all can share the WhatsApp. पुणे में ही है। Sorry. मैं पुणे में पुणे में ही है। हाँ हाँ, पुणे में ही है। Yeah, if you can share the WhatsApp link with us, we will also share it on our parent groups. So it'll benefit any parent who wants to join. I will share the link with you. Definitely, ma'am. Thanks. I will do that. रागिनी जी, क्वेश्चन? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं पुणे से ही बात कर रही हूँ। मेरी बेटी है, वो अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, नॉर्मल स्कूल में जा रही है। लेकिन अभी आपने जैसे डिस्कस किया वैसे थोड़ा स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है, थोड़ा अलग पढ़ रही है, बातें नहीं करते हैं बच्चे। तो अगर ये आपने जो ऑफलाइन स्कूल का बोला, तो वो इज इट वर्किंग एज अ प्रॉपर स्कूल, और कुछ छोटा टाइम पे 2 घंटे या 3 घंटे में ऐसी स्कूल होती है? ये मुझे आइडिया क्लियर नहीं हुई, क्योंकि शी विश टू गो टू स्कूल। I can understand. Yeah, Jogurkar ma'am, basically very nice question you asked. The whole idea is, when we started this NIOS thing, the whole idea was that children should not be deprived. मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाकी सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं घर में बैठ के पढ़ाई, किसी को अच्छा नहीं लगता। उनका भी एक अपना एक अपना जग है जहाँ उनको जाना है, फ्रेंड्स है। तो हम अंकुरम एक प्रॉपर स्कूल जैसे चलाते हैं, जहाँ हम उनको ड्राइंग, गाना, फिर हमारे लेजियम जैसे डांसेस होते हैं,
मतलब हम एक पूरा उनके लिए स्कूल का ही माहौल बनाते हैं और ये लोग स्कूल जैसे ही पढ़ाई करते हैं, सिर्फ ये पढ़ाई एनआईओएस की होती है। और हम इसको सेंटर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि सब बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं। समझो एक आधा बच्चा को नहीं समझ में आया तो वो स्कूल के बाद बैठ के टीचर के साथ वही पढ़ाई करेगा। सो बेसिकली इट इज लाइक अ प्रॉपर स्कूल जहां हम उनको स्पेशल एजुकेटर्स न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई में थोड़े से वीक है उनको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता उनको हम स्पेशल सेशंस देते हैं। इनकी गैदरिंग्स होती है, पिकनिक्स होती है, आर्ट, राइटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स। हम रादर हमारा प्रयास ये है कि ये बच्चे कहीं भी कम ना हो जब ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। सो जस्ट अलाउ मी वन सेंटेंस मैम, इट इज एब्सोल्युटली लाइक एक नॉर्मल शाळेसारखी शाळा आहे. So don't worry, you can visit us. You are all accordingly. Yes, I will invited to definitely visit. visit your school and I will go ahead with you. टाइमिंग इज 9:30 to 2:30. तो ऐसे नहीं है कि 2 घंटे में खत्म हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स यू डोंट नो वेयर टू कीप द चाइल्ड, कहाँ पे कैसे एंगेज करना, क्या सीखेगा। तो 9:30 to 2:30 में हम सब एकेडमिक्स, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ करते हैं इसमें। And Thank from you, what madam. age group does the school start? So we have from 8 years onwards, जहाँ पे हम छोटे बच्चों को भी लेते हैं, right from, so this is second standard, third standard, fourth standard, fifth standard भी लेते हैं। और then we also have, we have 10th standard, direct from 10th standard है और 12th standard है। पर अभी we have realized that we are having a lot of inquiries for 5th 6th से, क्योंकि अभी पेरेंट्स जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जल्दी दे टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन की ये ज़्यादा नहीं उनके साथ स्ट्रेस बढ़ना चाहिए एंड समथिंग हैज टू बी डन इन टाइम। पहले क्या होता था, द रूल फॉर स्कूल्स इज कि 8th स्टैंडर्ड तक यू कैन नॉट फेल एनी चाइल्ड। सो द स्कूल वुड ऑल्सो कीप ऑन पुशिंग देम विद द, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट दे हैव लर्निंग डिफिकल्टीज, कि उनके डिफिकल्टीज हैं पर वो ढकलते रहते हैं, दे डोंट गिव देम एनी मार्क्स। मतलब इवन द टेस्ट आर मार्क्ड व्हेन देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर, वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में क्योंकि ये पॉलिसी है। बट आफ्टर 8th वो एक डिसीजन लेते हैं कि अभी इसके आगे हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को बुला के बताते हैं कि प्लीज आपको ये अभी छोड़ना पड़ेगा, आप आगे नहीं कर सकते हो। सो इधर पे है, दिस इज वेयर वी स्टेप इन। बट अभी हमको वी हैव रियलाइज दैट नाउ पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर अवेयर एट अ अर्लियर एज कि वी डोंट वांट टू कीप आवर चाइल्ड देयर। हमको थोड़ा पहले से ही आइडेंटिफाई करके पहले से ही कुछ तो भी एक्शन और कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है। सो अभी देख रही हूँ मैं 5th 6th 7th के भी आ रहे हैं अभी। सो वी विल डेफिनेटली हैव अ प्लान, उनके साथ भी हमारा प्लान है डेफिनेटली। कुछ भी करके उनको हम पूरा ठीक से एक करिकुलम सिखाएंगे अप टू द स्टैंडर्ड 8 और 8 के साथ उसके बाद वी विल टेक देम, कन्वर्ट देम इनटू द एनआईएस बोर्ड का करिकुलम एंड पोर्शन सिलेबस। उसको हम ब्रिजिंग बोलते हैं, वो हम ब्रिज करते हैं 8th और 9th स्टैंडर्ड में। और फिर 10वीं को जो बैठता है ही इज फुल्ली अवेयर कि अभी 10th स्टैंडर्ड का उसका पोर्शन सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सो उसका वो सडन, इट्स नॉट इवन अ वेरी सडन शार्प क्या बोलते हैं चेंज कि अभी तो मैं ये सब्जेक्ट कर रहा था, अभी ये नया सब्जेक्ट कहाँ से आ गया। सो इट इज अ वेरी ग्रेजुअल एंड अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, बच्चों को एकदम स्मूथली कर सकते हैं वो। सो दिस इज हाउ वी प्लान जनरेटेड टू इट। ओके, आई गेस अभी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, नहीं तो पेरेंट्स हमको जब भी क्वेश्चन पूछेंगे हम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट कराएंगे। और थैंक यू सो मच कल्याणी मैम, हर्षाली मैम, तृप्ति मैम एंड शुभांगी मैम। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा एंड आई होप काफी पेरेंट्स के क्वेरीज भी सॉल्व हुई। और आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने के लिए। और व्हाट्सएप लिंक आप जरूर से शेयर करिएगा, हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर देंगे। जो आज भी ज्वाइन नहीं हुए हैं होपफुली वो भी कनेक्ट कर लेंगे आप सभी के साथ। थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you so much. Ma'am,